Good morning to everyone. Start with the recording. Today we will be starting with the new chapter, redemption of preference shares. Now, what do you mean by redemption of preference shares? The word redemption means repayment, पैसा वापस करना. किसका पैसा वापस करना? Preference shares का. As you all know, there are two type of shares, equity shares and preference shares. Now, what are preference shares? Preference shares, as the name says, these are those shares which have preference, first right, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, पहला राइट है इनको, एक तो डिविडेंड मिलने के लिए और दूसरा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी सबसे पहले द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड. सो in this chapter we will see how to repay, what are the accounting procedures to repay the preference share capital. preference shareholders ने जो बिजनेस में अपना पैसा लगाया है वो पैसा उनको कैसे, कब कब और कैसे वापस मिलेगा, that we will understand in this chapter, redemption of preference shares. Redemption means repayment, पैसा वापस करना. So here, let us understand some of the legal provisions, that is as per law, what we have to do, what are the important points that we will have to remember while doing redemption of preference shares. इसमें सबसे पहले what is important is no issue of irredeemable preference shares. मतलब ऐसा हुआ है कि after 1988 they say कि they have stopped all the companies, all the joint stock companies have stopped issuing irredeemable preference shares. So, and as per the Companies Act 2013 also, irredeemable preference shares इशू नहीं कर सकते. अभी मार्केट में जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑल आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब after a particular period, the amount of the preference shares has to be repaid by the company. So इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम का ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर का कैटेगरी अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दैट हैज बीन स्टॉप्ड. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना कंपनीज ने बंद कर दिया है. इट इज नॉट अलाउड टू इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इररिडीमेबल मतलब they are not repaid in the lifetime of the company. कंपनी जब तक रन करती है तब तक उसका पैसा नहीं मिलता. only at the time of winding up of the company the amount of the preference shares are paid. Next, redeemed. See, बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना पीरियड के बाद पैसा वापस करना रहता है. तो मैक्सिमम दे आर रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years. बोलते हैं दैट अ कंपनी limited by shares may, if so required by its articles, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years from the date of their issue. So preference shares जो है वो कितने टाइम, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इशू कर सकते हैं? 20 years. मैक्सिमम 20 years के लिए ही हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं. उसके बाद उससे ज्यादा पीरियड के लिए नहीं. हमने बोला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द अमाउंट हैज टू बी रीपेड. So
सो ये रीपे करने का कितना टाइम है हमारे पास? मैक्सिमम टाइम है 20 years। इतने पीरियड में हमें क्या करना रहता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना है। सो इसके बाद आप बोलोगे कि यस द सम सी इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट हम 20 years से ज्यादा समय के लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, बट दैट इशू कैन बी डन ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट्स है, सिर्फ उसके लिए मोर देन 20 years के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन वो भी 21st year से हमें थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा रीपे करना पड़ता है। सी लाइक 20 years के बाद इवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इट इज अलाउड कि वी कैन what we can do, we can issue preference shares for a longer period, more than 20 years. But in that case also, from the 21st year हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में रिडेम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। And how will you redeem the preference share? Now the question comes कि preference shares का पैसा कैसे वापस करें, किधर से वापस करें? तो what we can do, we can pay the amount of the preference share capital out of the profits of the company. मतलब हम कहाँ से यूज कर सकते हैं पैसा? We can use out of the profits of the company, which profits मतलब कोई भी प्रॉफिट यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज ओनली दोज प्रॉफिट विच आर फ्री इन नेचर, which can be utilized for payment of dividend। इसलिए वो प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। हम कौन से प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हम कौन सा प्रॉफिट यूज कर सकते हैं? हम वो प्रॉफिट यूज कर सकते हैं विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड, विच आर फ्री इन नेचर। इसलिए वो प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। या तो हम यूज कर सकते हैं बाई मेकिंग अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। उसके जो पैसे मिलते हैं उससे भी हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने के लिए या तो हम कंपनी के प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं, इन शॉर्ट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स आर द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस। इसलिए दे आर फ्री, दे आर नॉट ए स्पेसिफाइड रिजर्व, दे आर फ्री रिजर्व्स विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। इसका कॉमन एग्जांपल है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और हम लोग और एक सोर्स यूज कर सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब व्हाट? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग शेयर्स इन द मार्केट। मार्केट में फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करने के बाद हमें जो पैसा आता है वो पैसे भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद लेट 1 minute, let me, yes, let's start with the slideshow so that everything is visible to you in a proper manner. So as I discuss with you all the meaning of redemption of preference shares, it is very simple. क्या हो रहा है ये चैप्टर में? प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा रीपे किया जा रहा है। एंड आई एक्सप्लेन यू व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आर द परमानेंट शेयर्स ऑफ द कंपनी। दे आर रीपेड एट द एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ all other liabilities. So only at the time of winding up of the company, equity shares are repaid.
और प्रेफरेंस शेयर्स आर रीपेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम का कोई शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में, तो हम लोग मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। उस उतने टाइम पे रिडेम्पशन करना कंपलसरी है, अनलेस इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हम प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी यूज कर सकते हैं। कौन सा प्रॉफिट, ओनली डिविजिबल प्रॉफिट्स। एंड क्या यूज कर सकते हैं, फ्रेश इशू से जो पैसा मिलता है बाय सेलिंग शेयर्स इन द मार्केट, हमें जो पैसा मिलता है हम वो यूज कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ सी वी कैन नॉट रिडीम एनी शेयर, हम प्रेफरेंस शेयर्स को तब तक रिडीम नहीं कर सकते जब तक वो फुल्ली पेड ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली पेड? फुल्ली पेड मीन्स सपोज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज 100 रुपीज, फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज 100 रुपीज। सो अगर कंपनी ने 90 रुपीज कॉल्ड किया है, 10 रुपीज अभी भी कॉल करना बाकी है, शेयर होल्डर से मंगाना बाकी है, तो इसको हम बोलेंगे पार्टली पेड शेयर्स। फुल्ली पेड शेयर्स किसको बोलते हैं, कि जितना शेयर का फेस वैल्यू है उतना पूरा पैसा जब कंपनी शेयर होल्डर से कॉल करती है कि कलेक्ट अलग बात है, बट जब तक वो पूरा पैसा कॉल्ड आउट करती है, कॉल आउट करने के बाद ही हम बोल सकते हैं that the shares are fully paid. And for the purpose of redemption, only fully paid preference shares can be redeemed. मतलब हम कौन से शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं, only fully paid preference shares can be redeemed. Only fully paid preference shares can be redeemed. नेक्स्ट, हमें एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। हम क्या करते हैं, एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जितना भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है ना, विच वी विल बी यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए हम जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट कंपनी का यूज करने वाले हैं, दैट प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। Capital redemption reserve is a special reserve which is created for the purpose of redemption of preference shares. This is a special reserve. This is a reserve exclusively created for redemption of preference shares. So हम ये reserve के साथ क्या करते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होने वाला है आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो हम वो डिविजिबल प्रॉफिट को ये अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हम जो प्रॉफिट यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, दैट amount we will be transferring to the capital redemption reserve. Capital redemption reserve is a special reserve created for the purpose of redemption of preference shares. इफ वन, अभी देखो जब हम रिडेम्पशन करते हैं तो 3 तरीके से रिडेम्पशन कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट फेस वैल्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस 3 टर्म्स? अगर हम रिडेम्पशन 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर को 100 रुपीज रीपे करके करते हैं, मीन्स एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, इफ वी आर पेइंग 100 रुपीज फॉर द 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर, इट इज नोन एज रिडेम्पशन एट पार। जैसे इशू में ये 3 कंडीशंस होता है, वैसे ही रिडेम्पशन में भी ये 3 कंडीशंस होता है। फर्स्ट वन, व्हेन वी आर रीपेइंग 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपीज ओनली, हम उनको 100 रुपीज के बदले में 100 रुपीज ही वापस कर रहे, तो इट इज नोन एज रिडेम्पशन एट पार। अगर हम 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर को 100 रुपीज से कम पैसा देने वाले हैं,
तो इट इज नोन एज 100 से कम, 99, 98, कितना भी, बट 100 से कम, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर जितना भी हो, हम उससे कम पैसा जब रीपे करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो इट इज नोन एज redemption at discount. It is known as redemption at discount, which is a very rare situation. बिकॉज आप जब प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो ना, तभी पब्लिक को पता होता है कि रिडेम्पशन में क्या अमाउंट मिलने वाला है, प्रीमियम मिलने वाला है, पार मिलने वाला है, या यू विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑन डिस्काउंट। तो कौन से पब्लिक है वो विल परचेज द शेयर्स जो कि डिस्काउंट में रीपे होने वाला है। आप लोग को कम पैसा मिलेगा, 100 आपने लगाया, यू विल बी गेटिंग लेसर देन 100। ऐसा तो नो वन विल इन्वेस्ट अमाउंट इन सच प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसलिए बहुत रेयर चांसेस है कि डिस्काउंट में इशू होगा, आई मीन डिस्काउंट में रिडेम्पशन होगा। ऐसे हो सकता है इशू भी डिस्काउंट में हुआ, रिडेम्पशन भी डिस्काउंट में हुआ, ऐसा हो सकता है, लेकिन देन द अमाउंट में डिफर, कुछ तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है, नहीं तो द पब्लिक विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कंपनी शेयर्स। सो अगर अभी नाउ द क्वेश्चन हियर इज, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम में है, अगर आप मोर देन द फेस वैल्यू वापस करते हो, अगर शेयर का फेस वैल्यू 100 है और आप 110 रुपीज वापस कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो, देन वी से रिडेम्पशन एट प्रीमियम, देन वी से रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और रिडेम्पशन एट प्रीमियम मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसा वापस करना है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे के लिए हम प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, या तो हम एक्सक्लूसिवली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं। So what is security premium account? Securities premium account is a account where we store, जब हम शेयर्स प्रीमियम या कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करते हैं, तो वो प्रीमियम का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा में हमने इशू किया, तो वो एक्स्ट्रा पैसे को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में सेव करते हैं। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी हम यूज कर सकते हैं for the amount that extra we are paying at the time of redemption। तो रिडेम्पशन अगर प्रीमियम में हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे के लिए या तो हम प्रॉफिट्स का यूज कर सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स का, या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं। हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो here नेक्स्ट वन, हम सीआरआर को किधर यूज कर सकते हैं? हम ये सीआरआर क्रिएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम सीआरआर क्रिएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सीआरआर जो हम क्रिएट करते हैं, व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर मींस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। CRR means capital redemption reserve, which we create for the purpose of redemption of preference share। हम इसमें क्या करते हैं, जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है जो हम रिडेम्पशन के लिए यूज करने वाले हैं, उसको हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसे हैं, फंड्स है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में फंड्स है, तो दिस सीआरआर बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। मतलब हम बोनस शेयर्स को क्रिएट कर सकते। डू एनीवन नो व्हाट इज बोनस शेयर? What is bonus share?
एसपी स्टूडेंट्स विल नो वेरी वेल कि बोनस शेयर्स क्या होता है. Bonus shares are those shares which are issued by the companies for free. Yes, these are actually equity shares. मतलब इनको बोनस शेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, इसीलिए उसे बोनस शेयर्स बोलते हैं. बट बोनस शेयर्स आर एक्चुअली equity shares of the company which are given for free of cost to the existing equity shareholders. So bonus shares किसको देते हैं? बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में. तो वो देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. हम क्या यूज कर सकते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. We can use the capital redemption reserve. इसके बाद now again let us summarize everything what we have learned today. तो हमने सबसे पहले ये लर्न किया कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते. जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में सर्कुलेटेड है all are redeemable preference shares. मतलब these will be redeemed after a particular period of time. करेक्ट. और प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइम में रिडीम करना चाहिए? बिकॉज मार्केट में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर्स should be redeemable within 20 years. प्रेफरेंस शेयर्स क्या करना है? 20 years के टाइम में उन्हें रिडीम करना है, रीपे करना है. फिर देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जहां पे हम बियॉन्ड 20 इयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं. तो उनको भी हमें क्या करना है? अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 20 इयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. So such shares may be subject to the redemption of the prescribed percentage of shares on an annual basis at the option of such preferential shareholders. तो बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उनसे उनको ऑप्शन देके हम 21st ईयर से एनुअली ईयरली कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को रिडीम करना स्टार्ट कर सकते हैं. बट रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स बोलते हैं. कौन सा रूल? रूल 10 of the company's share capital and debenture rules 2014 states that a minimum 10% of such preference shares shall be redeemed per year from the 21st year onwards. अगर जब हम लोग 20 इयर्स के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, जो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करते हैं, रोड्स या सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर जो हम डेवलप करते हैं, तो हम लोग सिर्फ ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स बियॉन्ड 20 इयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं. और इधर भी फ्रॉम द 21st ईयर हमें मिनिमम 10%, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 10% हम रिडीम करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द 21st ईयर ऑनवर्ड्स. 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 21st ईयर से हम क्या करेंगे? मिनिमम 10% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना स्टार्ट करेंगे. और रिडेम्पशन दो चीजों से हो सकती है. रिडेम्पशन या तो डिविजिबल प्रॉफिट से हो सकती है. व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स? डिविजिबल प्रॉफिट्स आर दोस प्रॉफिट व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अगर यहाँ नहीं यूज कर रहे होते तो इसको डिविडेंड के लिए यूज कर सकते थे. दिस आर फ्री रिजर्व्स
तो वो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, की कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड चीज के लिए उसको जमा नहीं कर रहे, वो फ्री है, कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स या तो बोल सकते हैं डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं, दैट आर डिविजिबल प्रॉफिट्स। सो डिविजिबल प्रॉफिट से हमें जब रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट से कर सकते हैं, या तो हम फ्रेश इशू से कर सकते हैं, मार्केट में न्यू शेयर्स इशू करके फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। हमें फंड चाहिए तो हमने मार्केट में नए शेयर्स इशू कर लिए, फ्रेश इशू कर लिया, तो या तो हम डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, या तो हम फ्रेश इशू यूज कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा डिविजिबल प्रॉफिट थोड़ा फ्रेश इशू, या तो दोनों में से एक या तो दोनों यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एंड वन मोर थिंग, रिडेम्पशन हम सिर्फ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का ही कर सकते हैं, रिडेम्पशन हम सिर्फ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का ही कर सकते हैं। उसके बाद हम एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये कैसे क्रिएट होता है, प्रॉफिट्स जो हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स हमें जो रिडेम्पशन के लिए चाहिए वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, तो ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है। और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को हम बोनस शेयर के लिए यूज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देने के लिए, इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए, जिसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, वो पे करने के लिए हम ये शेयर्स यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर्स यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विच इज important, और बाकी we will do while doing the sums. If anything is left out, we will be discussing during the sums. And in this chapter you have journal entries and balance sheet. ये चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री है और कंपनी का आफ्टर रिडेम्पशन बैलेंस शीट है। मतलब दो चीज यहाँ पे हो सकता है, पहले जितने सम्स करेंगे उसमें जर्नल एंट्रीज रहेगा, फिर हम बैलेंस शीट वाला सम्स भी लेंगे। तो ये चैप्टर में दो टाइप के सम्स है, जर्नल ओनली जर्नल एंट्री सम्स एंड जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट सम्स। तो कितने टाइप के सम्स है यहाँ पे, एक जर्नल एंट्री सम्स और दूसरा जर्नल प्लस बैलेंस शीट सम्स। तो इसके लिए हमें ये चैप्टर का जर्नल एंट्री देखना पड़ेगा, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। में ये चैप्टर का जर्नल एंट्री करवाऊंगी, एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल आल्सो स्टार्ट विद द practical sums of journal. Okay everyone, thank you so much. I end today's lecture with this.